डीआईजी सीकेआर राजीव पांडे ने लाल चौक स्थित घंटाघर से पॉल्यूशन फ्री इंडिया अभियान के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एसपी ईस्ट विस्मा काजी और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। राजीव पांडे ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर ये साइकिल रैली निकाली जा रही है उसका मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों को वातावरण साफ बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने युवाओं से भी नशे से दूर रहकर अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकार के अभियानों में हिस्सा लेने को प्रेरित किया। पॉल्यूशन फ्री हो, दुनिया सारी फ्री हो, दुनिया सारी पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन फ्री हो। बैनर पकड़िए। और हम अगर दुनिया को पॉल्यूशन फ्री किए तो हम बच वो करवा लेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। आपकी तो आरोपी लगती है ना? हाँ सर, सब जीरो टेम्परेचर में ही आना था सर। आज हमारा जीरो टेम्परेचर है ना सर, 10+ हो गया। आप आए तो जी। पॉल्यूशन फ्री भारत ही हमारा मिशन है सर, और वो लेके हम चल रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। 4048 किलोमीटर का ये हमारी सफर है और इस पॉल्यूशन फ्री भारत का संदेश सब जगह देना चाहते हैं। यंगस्टर्स को हमारी ये कहना है कि मोबाइल से नेचर में आ जाओ, और नेचर में आने के लिए बहुत बड़ा जरिया है ये साइकिलिंग। और ये उम्र मुंबई से मैं आया हूँ यहाँ आप सब लोगों को मिलने के लिए, और कश्मीरियों को भी, जम्मू और कश्मीर को, सब नागरिकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप कहता हूँ कि आपका जो संदेश है पॉल्यूशन फ्री ये बात कम्युलेट करें और वाहन का इस्तेमाल कम करके ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। जी सर, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। जी सर। और आप सक्सेसफुली अपना साइकिलिंग जो है कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच सर। हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके आशीर्वाद मिले हैं। और दूसरी बात भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Thank you, sir. Thank you, sir. See, first of them, 4-5 days back, they approached me that they want to give the pollution-free India a message from Kashmir by driving down right from Kashmir to Kanyakumari, and that too on their cycle. And when I got to know these people are two are senior citizens, right, and all of them are beyond 50, right. So I thought it would be very prudent to encourage them to spread this message across the country, right, by cycling right down from Lal Chowk to Kanyakumari. Sir, we have seen different initiatives across ground, like especially some motorcycle races across, we have seen, but as we have seen that cycle race is something different. Any sort of major initiatives to be taken, especially in future, especially from the administration or police end? See, right now I cannot say that we are going to take such an initiative, but yes, if the citizens are taking by their own such initiative, we are sure, and we are right here to just motivate them and encourage them, just like what I did today. So many students and so many youth are connected with drugs as well. We have seen the menaces all around. So your message, because the fitness is a part. See, once you start the fitness journey, these drugs and other ancillary things, they naturally come down. So that's but natural that if you will start working out or doing something physical activity, and your other activities related to drugs and other things, those are bound to come down.
So my message would be, please take lesson and please take motivation from these people who are cycling down to the Kanyakumari, that they are giving priority to their fitness, and if they cycle down till Kanyakumari, I am sure that they are going to lose certain calories. So this is a very good initiative, and I would say people to take motivation from You it. believe that this will create the history from Ghantaghar's tower to See, many Kanyakumari? people have taken this many initiatives from Lal Chowk. This is a historic place. Right. So I would say yes, this will not only encourage youth of Kashmir but the whole of India as well to take such an initiative. Thank you very much. सर जी, ये हमारा इवेंट जो लाल चौक से शुरू हो रहा है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का 4048 किलोमीटर का हमारा सफ़र है। और पोल्यूशन फ्री भारत, ये नारा हम सब नागरिकों को देना चाहते हैं। हम साइकिल चलाते हैं और प्रदूषण भी कम करते हैं। ऐसे ही सब लोगों को ये जानना चाहिए कि मैं रिटायर हुआ हूँ, मेरी उम्र 67 साल है और 100 साल तक साइकिल चलाने का मेरा इरादा है, और मुझे मालूम है कि ये मैं कर पाऊँगा। और आज इतना बड़ा टास्क लिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी हम 4048 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने जा रहे हैं, और लोगों को यही बताना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं। खासकर यंगस्टर के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आप? दोस्तों, हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए यही कहना है मेरा कि मोबाइल से आप नेचर में आ जाओ। आपको नेचर देखना है तो साइकिल पर आ जाओ, और साइकिल से हम जब नेचर देखते हैं ना तो नेचर में घुल मिल जाते हैं, और उसी वजह से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि सबसे बड़ा हमारा जो गुरु है ना वो नेचर है, और वही हमें बहुत कुछ सिखाता है। लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, और अलग अलग टेरियन। अभी यहाँ जो 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर, हम समुद्र के किनारे रहते हैं लेकिन यहाँ भी सस्टेन हो रहे हैं। तो ये नेचर से जब जुड़ जाते हैं ना तो सब कुछ आसान लग जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि घूमो फिरो और देखो कि कहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, और यही भारत की एकता की पहचान है। जम्मू कश्मीर के मेरे युवा दोस्तों से मेरी ये अपील है। आज मैं 64 इयर्स का हूँ और मैं दुनिया भर में साइकिल चला के आया हूँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मैं मोबाइल में अपनी ज़िंदगी नहीं डालता। मोबाइल में जितना ज़रूरी है उतना ही ज़िंदगी डालो। बाकी आपके पास जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, आप ट्रैकिंग करो। आपके पास तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है स्वास्थ्य का। उसमें आप घूमो, आप फिरो। आपके पूर्वज जैसे शरीर से स्वस्थ थे, 6 फुट के थे, क्यों? कि वो शारीरिक एक्सरसाइज किया करते थे। साइकिलिंग ये वर्ल्ड में हमारी जो कोविड हुई, कोविड के बाद में साइकिल ये वर्ल्ड में माना हुआ एक्सरसाइज है। आप साइकिल चलाओ, आप पहाड़ों में घूमो, लेकिन मोबाइल में अपनी ज़िंदगी मत डालो। बहुत ही ख़राब है मोबाइल। मोबाइल से आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और आपकी फिजिकल और मेंटली दोनों नुकसान होता है। मोबाइल का उपयोग जितना पॉजिटिव होवे उतना 1-8 घंटे के लिए करो, लेकिन अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आप कम से कम 2 या 3 घंटा दो। कितने प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये आज हमारे साथ में 5 साथी हम हैं। 5 साथी हम यहाँ से जाएंगे जम्मू से जाएंगे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका होके हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हम जो रॉक ऑफ मेमोरियल है वहाँ पे जाएंगे, और दुनिया को आपके जरिए डीआईजी साहब आज आ रहे हैं। डीआईजी साहब के हाथ से ये फ्लैग ऑफ हो रहा है, पांडे सर जी, और उनके हाथों से हम आगे जाएंगे और दुनिया को ये मैसेज देते जाएंगे। पंचायत में जाएंगे, वहाँ के जो यूथ सारे हैं उनको इकट्ठा करके कहेंगे कि आप मोबाइल से बचो और फिजिकल एक्सरसाइज में आइए। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।